Hello everybody, I'm Anshika Krishnatri and welcome back to my channel Study 10th. I'm back with another episode of Chapter 2 Maths Polynomials, and today we are discussing the topic relations between zeros and coefficients of a polynomial. So as discussed in my previous video for polynomials, we did the geometrical meaning of the zeros of the polynomials, and there I taught you that how graphically we can find out the number of zeros for a given polynomial. I've also told you that for a quadratic polynomial or any other polynomial, the highest degree of a polynomial is equal to the number of zeros. Like for a quadratic polynomial, the number of its highest degree is 2. So the number of zeros will be 2 only. Similarly, for a cubic polynomial, the number of zeros will be 3 because the degree of polynomial is 3. So, and also I have told you the geometrical meaning, that how to find the number of zeros by looking at a graph of a polynomial. So I have discussed the many types of graphs of a polynomial which can be formed, and in the syllabus of class 10 this year, it can be a parabola opening upwards, downwards, left or right. Also, it's a straight line graph, it's a wavy graph. So just quickly recapitulating what we've done. This is the x-axis and this is the y-axis. Suppose it's a 1 marker question or an MCQ and the graph is given to you as this. It's the graph of a polynomial in a wavy nature. So what will be the number of zeros by looking just at this graph? So as we have discussed, the graph of a polynomial, number of times the graph of a polynomial cuts the x-axis is equal to the number of zeros. So किन किन पोजिशंस पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 1, 2 and 3. अगर वो यहाँ कट कर रहा है तो भी हम ये पॉइंट गिनेंगे बिकॉज ओरिजिन इज ऑल्सो ऑन दी एक्स एक्सिस. ओके, सो अगर ये हम छोड़ देते हैं तो 1, 2, 3. सो ऑप्शन आपका 3 zeros ऑफ दिस polynomial whatever the polynomial this is, it has 3 zeros. So recapitulating आज के लिए बहुत हो गया. Let's just quickly get into the topic of relationships between the zeros and the coefficients of a polynomial. So before getting into the topic and explaining what is it, let's discuss the two main terms of the topic, which are the zeros and the coefficients. I like to start from the basics. So let's just see what zeros and a coefficient of a polynomial mean. मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी बिकॉज डेफिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ सकते हैं. zeros of a polynomial, like if I take a polynomial 6x square minus 4 minus x minus 2. If I take this polynomial, let be fx का मतलब जब वेरिएबल है it's x. तो इसमें जो भी x की वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू x की आएगी, for which fx is equal to 0. Like मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ. You can put the value of x and check for yourself of the equation. X can be 2 or 3 or minus 1 by 2. For these two values, if you put over there, the value of this whole polynomial will be 0. So these two values are regarded as the zeros of a polynomial, zeros of polynomial fx, जो कि यहाँ पे हम question में state कर रहे हैं. And secondly, I hope this is clear. Coefficients is a numerical constant quantity which is multiplied when the variable in any algebraic expression. So let's take this 3x cube. तो अब ये जो वेरिएबल एक्सप्रेशन है इसके साथ जो कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई की गई है, इट्स द कोएफिशिएंट. द कांस्टेंट क्वांटिटी ओवर हियर इज 3. सो फॉर x क्यूब द कोएफिशिएंट इज 3. सिमिलरली फॉर x द कोएफिशिएंट इज 6. ओके, सो आई होप दीज टू टर्म्स आर क्लियर टू यू. एंड अब जीरोस और कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया गया है. वो रिलेशनशिप क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. लेट्स टेक अ पॉलिनोमियल. अ बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a, b और c कांस्टेंट टर्म्स है एंड x इज द वेरिएबल. सो दिस इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब इसके मान लीजिए वी आर theoretically discussing the type of theorem over here. So alpha or beta मान लीजिए is the zeros of these polynomial. So the sum of the zeros, sum of zeros will be minus b by a. Minus b by a where b is the coefficient of x. यहाँ there है where b is the coefficient of x and coefficient of x square which is a. तो ये हर पॉलिनोमियल के लिए ट्रू रहता है. The sum of the zeros will represent minus b by a. तो आपको याद सिर्फ minus b by a करना है, in which b is the coefficient of x
and a is the coefficient of x square. We are talking for quadratic polynomial, so we will take x square also. Cubic polynomial आपके syllabus में नहीं है, so I think we won't be discussing that. And similarly for sum of zeros, and we are here also here for the product of zeros. हम types of questions भी discuss करेंगे, various types of questions which can come in exams for 2 markers, not more than that, only 2. 1 के तो आते ही नहीं है इस टॉपिक में से. Okay, so the products of zeros will be C and A, in which C represents the constant term. Here C, which represents the constant term, and A is the coefficient of x square. तो एक common बात याद करने के लिए ये हो गई that the denominator for both of these sum and product will be A, which is the coefficient of x square. अब now कोई भी polynomial आपको दिया है, इसमें क्या होगा, x square minus sum of zeros, it can be plus or minus, plus product of zeros. ये बहुत important है याद रखना. Like जो भी x के साथ वाला टर्म, x वेरिएबल का कांस्टेंट टर्म होगा वो सम ऑफ जीरोस होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा कोएफिशिएंट x स्क्वायर का सम ऑफ जीरोस होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा पॉलिनोमियल में इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. इट कैन बी एज अ वन मार्कर. आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. बहुत सारी इक्वेशंस दी होंगी, इनमें इन वैल्यू रिप्लेस कर दी होगी, बट यू नो एंड के हियर इज अ कांस्टेंट फॉर एनी पॉलिनोमियल. कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, उसके लिए कांस्टेंट है. ओके, सो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर. एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बिकॉज जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स का मतलब आपको बताना बहुत क्लियर है, एंड दिस इज जस्ट learning part और समझने का part. And now rest is questions. Let's quickly begin with the questions. I am rubbing this questions. I won't be writing the full questions. I will be telling you short form, and side by side आप pause करके खुद भी attempt कर सकते हैं. First question आप लोग देख लीजिए, and everything will be super clear to you because we have done so nicely. Okay? Okay, rub. Let's come with question number 1. Question number 1 says that find the zeros of the polynomial. Polynomial हमको दिया है x square plus 7x plus 12 and verify the relationship. ओके, वेरीफाई द रिलेशनशिप जो कि हमने डिस्कस की थी जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स की. तो अब पहले हमें जीरोस निकालना है. बेसिक जीरोस निकालने का मेथड हमने 8th क्लास और 7th क्लास में भी किया है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम वही यूज़ करेंगे. उसके सिवा आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ यूज़ भी करना चाहिए, बिकॉज इट्स द मोस्ट बेसिक मेथड एंड एक्यूरेट आंसर आपको मिल जाएगा इफ यू हैव प्रैक्टिस इट. सो fx is equal to x square plus 7x plus 12. Now 12 को ब्रेक करेंगे, x square plus 4x plus 3x plus 12. x कॉमन लिया फर्स्ट टर्म से, x plus 4 plus 3 and 4 3s are 12 plus 4. 0 हम ऐड कर देंगे हर जगह. ओके, नाउ x plus 3 एक चीज़ हो गई and x plus 4 दूसरा चीज़ हो गई. x can be -3 और -4. तो हमें zeros of the polynomials मिल चुके हैं, हमें 2 zeros मिल चुके हैं. अब now we have to verify the relation between the polynomials, between the zeros of the polynomials and the coefficients of the polynomials. तो पहला चीज़ अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे sum of verify sum of zeros is equal to minus b by a. बस ज़्यादा फॉर्म नहीं लिखना है. सम ऑफ जीरोस -3. अब इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, बिकॉज माइनस है तो अब साथ में लिख देते हैं. आपको होल स्टेट करना है. अब माइनस तो ऐसा ही रहेगा, माइनस को आपको टच नहीं करना है. माइनस इज अ डिफरेंट थिंग, सो वी हैव टू कीप इट डिफरेंटली. अब कोई काटा पीटी अभी इस स्टेज पे नहीं करनी है. b, लुक एट द इक्वेशन. b क्या दिख रहा है आपको, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. b क्या है यहाँ पे, 7 है, तो 7 लिख दिया. a is the coefficient of x square. x square में coefficient अभी कुछ नहीं लिख रहा है, मतलब 1 है, तो यहाँ नीचे 1 आ जाएगा. so we can simply write it as
7 -7, तब इसको प्लस करेंगे -3 -4 इज इक्वल टू -7 -7. This is verified. Now for product of zeros भी सिंपली हम वैसा ही करेंगे, पहले चीज़ें लिख के फॉर्मूला लिख देंगे विच इज C/A. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट करिए, 2 जीरोस हमें मिले हैं दिस, एंड C विच इज द कांस्टेंट टर्म, हियर कांस्टेंट टर्म इज 12, तो C नीचे लिख देंगे, और A हमें 1 पता है 1, तो सिंपली नीचे 1 होता है, इसको कोई मतलब नहीं होता, सो इट्स 12, 4 3s are 12 is equal to 12. This is also कैसी साउंड है, this is also verified. Means for the equation for the quadratic polynomial f(x), the relationship between zeros and coefficients is verified. It holds true. Okay, so आपको homework questions भी मिलेंगे लास्ट में. I hope this is clear, which must be, पहले आप इक्वेशन जो भी लिखी है उसका फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस निकालिए, फिर आप 2 फॉर्मूलाज दिए हुए हैं टू वेरीफाई from both these things. Sum of zeros minus b by a, product of zeros C/A. C is constant term, b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square. b by a में जो माइनस साइन लगा है इसे कुछ टच नहीं करना है, ओनली जब आप स्टेप्स के एंड पे आ रहे हैं तब आप एलिमिनेट हो रहा है तो आप कर सकते हैं. ओके, नाउ होप दिस इज क्लियर. लेट्स हॉप ऑन टू अनदर क्वेश्चन. फाइंड द जीरो, अब देखिए मैं बस ये मिटा रही हूँ. फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर x स्क्वायर प्लस 8x. ओके, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप. तो अब वेरी गुड, f(x) इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x. आपने यहाँ 4 और x कॉमन ले लिया, अंदर आपको बचा x प्लस 2, सो इज इक्वल टू ई, 0 से इक्वेट कर दीजिए. सो u x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2. मतलब कि 4x 0 हो सकता है या x प्लस 2 0 हो सकता है, तो या 4x नीचे चला गया 0 के, तो ये तो 0 ही हो गया. या तो हमें 2 अपने वो मिल चुके हैं zeros of the polynomials, हमें 2 ऑप्शन हो चुके हैं, 0 and 2. अब नाउ हमें दिया है कि वेरीफाई. बस वेरीफाई में क्या करना है, सम ऑफ जीरोस करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, जो कि रिलेशनशिप्स में हमें पढ़ाया है. सम ऑफ जीरोस इज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज C/A. -b/a, माइनस साइन अनटच्ड रहना चाहिए. b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, x के साथ हमें 8 दिख रहा है. ओके, एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ 4 दिख रहा है. तो ये हो गया. c इज द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ नहीं है, ईच एंड एवरी कोएफिशिएंट इज विद अ वेरिएबल, सो इट्स 0 और नीचे 4 है, तो ओवरऑल कोएफिशिएंट C/A 0 ही होगा. तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस विल बी 0 प्लस -2 विच इज -2 by -8/4. माइनस माइनस कट हो गया, ये 2 हो गया. 2 इज इक्वल टू 2. दिस इज वेरीफाइड. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज वेरीफाइड. दिस इक्वेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड. तो आपको नीचे एक लाइन लिख देनी है बस कि the relationship between zeros and coefficients of this equation is verified. ये सिर्फ नीचे ऐसे स्लैश करके वेरीफाइड, प्रूव, जो भी आप लिखना चाहें वो लिखिए. सो इट्स वेल स्टेटेड. ओके, यहाँ तक हमने बहुत कुछ कर लिया है. वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस हमें ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं. सो एक थोड़ा सा NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है. लेट्स गेट ट्रिकी विद इट. द जीरो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल हमें दिया है x स्क्वायर प्लस 1/6x -2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. तो अब आपको ये करना है,
फॉर दिस इक्वेशन टू सॉल्व हम लोग ले रहे हैं 1/6 एज अ कॉमन, क्योंकि हम लोग सॉल्व करने के लिए तो इसे डिनोमिनेटर सेम ही करेंगे, तो 1/6 कॉमन लेके ही अब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को जो कि हमें अंदर मिल रही है. 1/6 can be written as 6x square plus x minus 2 6 are 12. Okay, and 1/6 will be 6x square plus 9x minus 8x minus 12. तो अब क्या होगा 1/6 क्या होगा हम लोग 1/6 एक चीज कॉमन ले लेंगे. 3x में 2x plus 3. ओके, एंड नाउ प्लस की जगह माइनस और 2x plus 3. बेसिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना. नाउ 1/6 will be 3x minus 4 and 2x plus 3. Okay, now equating it to 0, sum equal to 0 होगा. Now we get 2x plus 3 is equal to 0 and 3x minus 4 is equal to 0. So x can be minus 3/2 और x can be 4/3. इसमें ट्रिकी सिर्फ आपको फैक्टराइज करना हो सकता है, ना कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मूले में डालना कोई बड़ी बात नहीं होती है. Proving is the best part of 10th, and if you keep practicing, nothing can be defeated at all. माइनस साइन अनटच्ड रहेगा. सम ऑफ जीरोस हम लिख सकते हैं -3/2 प्लस 4/3. क्विकली इसे हम क्या कर सकते हैं, -9 + 4 2 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 3 2 6 -1/6 इज इक्वल टू माइनस b/a का हम यहाँ पे लिख रहे हैं b इज टू बी रिटन एज 1/6. इक्वेशन में देखिए 1/6 एंड x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो 1/6 by 1 which will be equal to -1/6. तो ये और ये तो इक्वल हो गए. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 × 2 एंड 4 × 3, तो कट किया तो 2 बचा. और c कांस्टेंट टर्म हमारा -2 है और नीचे हमारा 1 है, और यहाँ पे भी हमारा माइनस है, माइनस माइनस कट हो गया, तो इज इक्वल टू 2 एंड दिस इक्वेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड. ओके, आज हम बहुत बड़ा क्वेश्चन कर चुके हैं. हमने 0 से तो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए दिस इज अ पॉलिनोमियल. 1/6 हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि अगर हम वो करते 6 को पहले पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 हो गया. 1/6 हमने पूरे इक्वेशन में से कॉमन ले लिया. फिर हमने अंदर की इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करते चले गए. 1/6 इज अनटच्ड. फिर हमने लास्ट में जाके जो हमें 2 वैल्यूज मिली उनको 0 से इक्वेट कर दिया, और हमें x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट हो गई, -3/2 एंड 4/3. नाउ सम ऑफ जीरोस में -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a में हमने वैल्यूज लगाकर इक्वेशंस और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स को वेरीफाई कर दिया. ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है. प्लीज डू टेल मी इफ आई एम अ लिटिल फास्ट और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि थोड़ी सी मेरी आदत तो. नाउ दिस इज आई एम डूइंग अ लिटिल 1 मार्कर थिंग, जो कि एक्सपेक्ट यूटीज वगैरह में आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो अब क्या ही होगी. फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Find a quadratic equation each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively. मतलब एक हम लेते हैं, हमें sum and product are given. Like एक पार्ट लेते हैं, it's given by 1/4 and -1. It's an NCERT equation. तो अब आपसे कह रहे हैं कि आपको पता लगाइए अबाउट द इक्वेशन. पॉलिनोमियल का हमें पता लगाना है.
तो सम हमें दिया है, दिस इज द सम एंड दिस इज द प्रोडक्ट। तो एक, इफ यू रिमेंबर, मैंने स्टार्टिंग में आपको इक्वेशन कराई थी, जब कोई भी पॉलिनोमियल हो, इसका के कांस्टेंट होता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इज द सम ऑफ जीरोज जो एक्स के साथ है एंड प्लस माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। तो अगर आपको इक्वेशन निकालनी है सम और प्रोडक्ट से, जो कि आपको 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो इक्वेशन विल बी गिवन एज के, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, एक्स स्क्वायर के साथ ही आ जाएगा प्लस माइनस सम ऑफ जीरोज विल बी 1/4 प्लस माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी -1। तो मतलब माइनस दिया है तो इट विल बी -1, और क्योंकि यहाँ पे इसके आगे प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, माइनस गायब हो जाएगा। एंड आई थिंक सो यस, परफेक्टली फाइन, दिस इज योर इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। एक और ले लेते हैं क्विकली, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 0/√5, 0/5 √5 आपका ये है, इसमें ये सम है और ये प्रोडक्ट है। तो ये इक्वेशन में नहीं लिखना है, ये सिर्फ एमसीक्यू टाइप में आएगा। तो आपको बस क्या कर देना है, के लिख के एक्स स्क्वायर, अब भाई सम ऑफ जीरोस तो 0 है और कांस्टेंट आपका √ है, तो प्लस हो जाएगा आपका √5 and this is it, this is your f of x for this particular number। तो बस आपको याद रखने का कुछ नहीं है, याद रखना बस आपको ये है and those two formulas for sum of zeros and product of zeros। okay, I hope I'm not exceeding any time limit over here, because it can be a little crazy comes sometimes। okay, last question, I hope it's a little tricky if you want to find, guys। okay, alpha and beta are the zeros for f of x is equal to x square minus x minus 2। find a polynomial, find a polynomial जिसके zeros हैं 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। okay, I hope you're understanding the question। if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus x minus 2, तो ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना है हमें जिसकी जीरोस ये 2 हो। अब हम ये कैसे करेंगे, पहले इट इज गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अब अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल की, तो हम इसे वेरीफाई करेंगे फॉर सम एंड जीरो, फॉर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देन एस एंड बी डिनोट रिस्पेक्टिवली द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के भी सम ऑफ जीरोस और दिया गया है। तो अब ये जो होने वाला है, यू कैन परफेक्टली वॉच कि ये क्या होने वाला है, बिकॉज इट्स गिवन फॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a माइनस, अब b के लिए भी -x आएगा, -1 आएगा सॉरी, एंड a के लिए भी 1 आएगा, so it's like 1 only, and product of zeros will be c/a minus 2/1, so it will be -1। now let s denote 2 alpha plus 1 sum of zeros and 2 beta plus 1। सम ऑफ जीरोस हम कर रहे हैं फॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए जो हमने इक्वेशन किया था के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सम ऑफ जीरोस फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड प्लस माइनस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो ही हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ओके,
and for the product of zeros 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. for the product of zeros अब हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4 alpha beta plus 2 alpha plus 2 beta plus 1 इससे करेंगे plus 1. इसको हमने इससे किया और इसको हमने इससे किया, देन 1 को 2 बीटा से किया एंड 1 को 1 से किया. अब इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है. सो अब यहाँ पे हमें पता चला है फ्रॉम दिस इक्वेशन कि अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड अल्फा बीटा इज -2. तो अब ये जो दो वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन के लिए ऐड ऑन कर देंगे. हाउ? यहाँ पे हमने निकाला है 2 अल्फा प्लस बीटा विल बी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 इंटू 2 विच इज 4. तो सम ऑफ जीरोस 4 आ गया. एंड सिमिलरली फॉर द प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज गिवन बाय 2 -2 लगा दिया प्लस अब यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे 2 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा लगा दिया प्लस 1 ले लिया -8 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इज 1. तो 2 की जगह देते हैं प्लस 1. तो -8 प्लस 3, 8 में से 3 गया, इट्स -5. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -5. सो अब मैं आपका थोड़ी सी स्पेस लूंगी यहाँ पे. हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड आउट द डिजायर्ड पॉलिनोमियल फॉर द जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1. तब हम इक्वेशन जानते हैं. तो फॉर द गिवन इक्वेशन जो भी होगी उसके लिए हमारी इक्वेशन होगी x² कांस्टेंट टर्म बाहर होगा, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस पहले आएगा तो प्लस 4 माइनस 4x माइनस 5 के x² प्लस 4 माइनस 5. सम ऑफ जीरोस का कोएफिशिएंट होता है x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -5 के साथ है तो माइनस यहाँ पे लगा दें. सो दिस इज द डिजायर्ड पॉलिनोमियल. लेट मी जस्ट क्विकली चेक मैंने क्या किया है. परफेक्टली फाइन. यहाँ पे बस माइनस होगा. ओके and k is a non-zero constant. So this is it for today's video, guys. We have completed the relationship of zeros and coefficients of a polynomial. मैंने आपको कुछ questions भी discuss करवाए हैं. Thank you for watching my video. Comments are always appreciated.